Well friends, now let's deal with a very amazing example, and that is t is equal to ax square plus bx. This one functionality is given to me and it is asked, we have to find out acceleration in terms of instantaneous velocity. We are interested to find out the value of acceleration as a function of or in terms of instantaneous velocity. पता चला मुझे ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, पूछा है कैलकुलेट, फाइंड, डिराइव, डेवलप द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. फाइन, पता चला. यानी वी हैव टू डेवलप समथिंग ए विच इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कुछ तो डेवलप करना है. यानी ए का ऐसा इक्वेशन होना चाहिए, ए का ऐसा इक्वेशन होना चाहिए, यानी ए इज इक्वल टू समथिंग इनटू वी, वी स्क्वायर, v क्यूब, v पावर n, कुछ भी, यानी इट शुड बी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. The relation between t and distance x is given as t is equal to ax square plus bx, where a and b are the constants. Express the instantaneous acceleration in terms of instantaneous velocity. Express the instantaneous acceleration in terms of instantaneous velocity. Bloody hell, I know my basic concepts that if I have to go for the acceleration, initially I'll need the value of velocity, and if I want the value of velocity, we can say it is dx by dt, and if I want to do this dx by dt, I know that x should be the function of time. Here the case is different. X is not the function of time, and this is the equation where we can't even get that formulate x and get it as a function of time. It's not possible. इसके पहले वाले इक्वेशन में वो पॉसिबल था, ये वाले इक्वेशन में पॉसिबल नहीं है, राइट? तो साला पहला ही में कर नहीं सकता यहाँ पे. बराबर. पता चला कि नहीं पता चला? पता चला कि नहीं पता चला? और आज ये डेरिवेशन, ये पूरा समझने के लिए you have to understand one more fundamental of differentiation, and that is like this, and that is like this: d by dx of x raised to n, x raised to n, which is equal to, we know that it's nx raised to n minus 1, so it's nx raised to n minus 1 into dx by dx. But we never write it because dx by dx is what? 1. So we don't write it. But actually formula ऐसे जाता है. So that's why if I have something which is like this, d by dx of x plus 1, x plus 1 raised to n, then it is equal to n, x की जगह भी क्या आ गया? x plus 1 raised to n minus 1 into x की जगह क्या आ गया? d by dx of x plus 1. वापिस it will become 1. d by dx of x will become 1 or d by dx of 1 will become 0. पता चला कि नहीं पता चला? But if it is the case, you have to do it this way. यानी अगर मेरे पास ऐसा है d by dx of x square plus 2 raised to 3 which is equal to, fine, तो मैं क्या बोलूंगा? According to this formula 3 आगे आ जाएगा, जो भी है x square plus 2 raised to n minus 1, 3 minus 1, पता चला, into d by dx of क्या हो गया? x square plus 2. ये पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? फाइन, सिंपल है. जैसे देख, ये अंदर वाली जो चीज है, अंदर वाली जो चीज है वही अंदर वाली चीज है, अंदर वाली जो चीज है वही अंदर वाली चीज है, अंदर वाली चीज है, अंदर वाली जो चीज है, अंदर वाली चीज है, अंदर वाली वो चीज है. पता चला कि नहीं पता चला? सेम. यानी d by dx of anything raised to n which is equal to n, anything raised to n minus 1 into d by dx of anything. समझ पड़ा? So this becomes a general formula. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है सबको? क्लियर हो रहा है सबको? नहीं पता चल रहा है? ये पता चला? x का ये है तो हर एक x को उससे रिप्लेस कर दिया. ये जो है उसमें x निकाल दिया, x निकाल दिया, x निकाल दिया, ब्रैकेट बना दिया, तो देखो आ गया. पढ़ा? सिंपल है, वेरी सिंपल, इवन आई नो. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So you have to remember this formula, we have to remember this formula. Fine, we have to remember this formula. ठीक है, अपने को ये फॉर्मूला याद रखने का है. फाइन, ओके. d by dx of anything raised to n which is equal to n anything raised to n minus 1 into d by dx of anything. क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? समझ पड़ा बेटा? देख ले, अच्छा है एग्जाम्पल. चलो अभी तो चालू नहीं हुआ एग्जाम्पल, हैं? We are just getting acquainted with the things which are needed. संस्कार,
आपकी बुक बंद कर दो, बाजू वाली बुक बंद कर दो, फाइन, यानी आप जो नीचे देख रहे हो उसी जगह बोर्ड पे देख लो, है ना। चलो चलिए, सो देखते हैं बेटा रोहन शुक्ला जी ध्यान दो, ज्ञान लो चलो, सो वी हैव गॉट शुक्ला जी, we have got v which is equal to dx by dt, but if I want to do this, I know that x should be the function of time, otherwise you cannot follow this formula. फाइन, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले का फंक्शन होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी नो, इट इज अ प्रीरिक्विजिट, x शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम, हियर दिस इज नॉट द केस। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उल्टा छत्ता कर सकता हूं, dt by dx करो, तो t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वो चलेगा। ओ dx by dt if it is equal to v, so dt by dx which is equal to 1 upon v समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, ये क्लियर। सो विल बी हैविंग d by dx of ax square plus bx, समझ पड़ा ये, फाइन, अंदर गया, सो a बाहर निकल गया, अपने का ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया कि नहीं हो गया, प्लस b बाहर निकल गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया कि नहीं हो गया, सो 2ax plus b which is equal to 1 upon v, so v which is equal to 1 upon 2ax plus b, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, फाइन। अभी एक्सेलरेशन कैसे ढूंढते हैं, एक्सेलरेशन a is equal to dv by dt, but again v should be the function of time, है, v is a function of time, is it, no, it is not the function of time, वो साला टाइम का फंक्शन नहीं है, तो सर वो कैसे करेंगे, तो वो ढूंढना है, उल्टा करेंगे तो क्या होना चाहिए बेटा, टी ओ वी का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे टी भी कहाँ है, कैसे लाएंगे, बता तू वैल्यू डाल, कैसे लाएंगे, ऐसे करके थोड़ी वैल्यू आ जाएगी, बोल, हाँ ऊपर से डाल, बोलने में अच्छा होता है, दिखाओ कैसे डालेंगे वैल्यू, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, दिक्कत कहाँ आ रही है पता चल रही है सबको, यू टू अंडरस्टैंड द इश्यू, इफ यू अंडरस्टैंड द इश्यू एट फर्स्ट, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द प्रोबेबल सॉल्यूशंस फॉर द सेम, क्लियर हुआ, फाइन, पहले तो हाँ ये हो गया ना, डाल दो ना, आ जाएगा ना आंसर सर, दैट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, फाइन, पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा, यस, कैसे करेंगे, किसकी वैल्यू क्या कहा, ये v को यहां पे डाल देना, ये आया कहां से, यहां से तो आया ना ये, मुझे a और b की वैल्यू चाहिए ही नहीं, वो प्रॉब्लम ही नहीं है मेरा, इट्स अ कांस्टेंट, प्रॉब्लम क्या है, I cannot do this dv by dt because v should be the function of time, but here I can't find v is a function of x right now, do you understand what's the problem, I can't do dv by dt right now, the reason is that in this case v should be the function of time, whereas my v is the function of x, અંકુશ અહીંયા ધ્યાન આપીશ તો વધારે મજા આવશે, રાઈટ અંકુશ, से सॉरी, હવે કઈ ના બોલું ને હું, તો પોલ પકડાઈ જશે ને, चलो, सो प्रॉब्लम है यार, कर नहीं सकता वैसे डिफरेंशिएशन इसका, आंसर तो लाना है, क्वेश्चन है, मैंने आंसर तो होना ही मांगता है, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम कर क्या सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं dv by dx कर सकते हैं, dv by dt नहीं कर सकते, फिर से dv by dx करके करेंगे क्या सही है ना, dv by dx करेंगे क्या अपने, फाइन, तो सेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे, चल सेटिंग दिखाता हूं तेरे को, फाइन, सेटिंग ऐसा है इसका कि a is equal to what, dv by dt, बराबर, फाइन, मैं क्या करूंगा पता है, dx के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, dx के साथ डिवाइड करूंगा, ऐसा तो कर सकता हूं ना, dx by dx is 1, हाँ,
अभी मैं ऊपर नीचे का थोड़ा ऐसे स्वैपिंग करेगा, देख कैसे मजा आता है. सो दैट इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dx multiplied by dx divided by dt. Oh my cheese. Oh my cheese. So we have got dv by dx. देखो वो आ गया, जो मुझे चाहिए था वो आ गया कि नहीं आ गया, पता चला कि नहीं पता चला. जो मैं कर सकता है ये मैं कर सकता है, इट्स अलाउड. v dv by dx I can do, it is allowed. पता चला. I cannot do dv by dt. Fine, I cannot do dv by dt. तो मैंने सेटिंग कर लिया. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा सबको? फाइन. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है. dv by dt कर सकते हैं ना. यहाँ पे dv by dt बेसिक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का वही है. फाइन. मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता ना एक्सेलरेशन इक्वल dv by dx. कैन आई से दैट? नो, आई कैन नॉट से दैट. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो dv by dt है, तो मैंने dv by dt डाला, dx को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और मैंने थोड़ा स्वैपिंग कर लिया. फाइन. अभी मुझे यहाँ पे dv by dx मिला, तो मैं कब का तुझे चिल्ला के बोल रहा था dv by dx आई कैन डू, बट दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ? dv by dx एक्सेलरेशन है? नहीं है. dv by dx इज नॉट एक्सेलरेशन. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन. तो मैंने यहाँ पे सेट किया, तो dv by dx आई कैन डू. Oh, dx by dt is what? dx by dt? Velocity. Fine. So I can say that which is equal to dv by dx multiplied by velocity. Fine. So this is the value of acceleration. Fine. अभी dv by dx करना बाकी है. So let us start doing dv by dx. So now dv by dx which is equal to d by dx. So v कितना है? 1 upon 2ax plus b. तो अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है डिफरेंशिएशन. फाइन. तो चलो हम कैसे करेंगे? dv by dx which is equal to d by dx of, ये इसको बोलेंगे 2ax plus b raised to minus 1. d by dx anything raised to n. फाइन. which is d by dx anything raised to n. ध्यान से देखियो, गौर से देखियो. फाइन. इज इक्वल टू n into anything raised to n minus 1, anything 2ax plus b raised to n minus 1 पढ़ा, into d by dx of anything into d by dx of anything 2ax plus b. समझे क्या? ये स्टेप क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? किसी को डाउट इस स्टेप में? फाइन है? पढ़ा समझ पड़ा? ये अभी पिक्चर का हीरो था अपना, ये एग्जाम्पल के. फाइन. ये स्टेप नहीं समझ पड़ता. फाइन. अभी 2 मिनट में एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा. चलो. सो विल बी हैविंग dv by dx which is equal to minus -2 हो गया, मतलब 1 upon हो गया, वो 1 upon 2ax plus b raised to 2. पढ़ा. ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, नीचे आ गया तो +2 हो गया, into d by dx of 2ax. तो ये अंदर गया, 2a बाहर निकला, dx by dx 1, सो अंदर 2a आया, प्लस b का डिफरेंशिएशन 0, सो 2a निकला यहाँ पे. सो we have got the value of dv by dx which is equal to -2a upon 2ax plus b the whole square. Okay, I have got this much. अभी ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा. फाइन. as we know acceleration is equal to dv by dx multiplied by v, so I can say dv by dx is minus 2a upon 2ax plus b whole square into v. पता चला कि नहीं पता चला? गार्डन ना, एक मिनट, ये पता चला? वापस यहां से वापस चालू करते. देखो, d by dx of anything raised to n, d by dx of anything raised to n which is equal to n into anything raised to n minus 1, anything raised to n minus 1 into d by dx of anything, d by dx of anything. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर. फाइन. चलो. सो विल बी हैविंग माइनस 1 अपॉन, ये ऊपर -2 होगा तो नीचे जाके स्क्वायर हो गया, ये पड़ा, इनटू. समझ पड़ रहा है बेटा निलय?
ओके इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2a बाहर निकल गया, dx बाई डी एक्स 1, अंकुश पता चल रहा है बेटा, पक्का, फाइन, 2a बाहर निकल गया, तो dx बाई डी एक्स क्या हो गया 1, प्लस b का डिफरेंशिएशन 0 cos b इज अ कांस्टेंट, तो 0 डन, सो 2a यहाँ पे चौंट गया, तो विल बी हैविंग माइनस 2a अपॉन 2ax प्लस b द होल स्क्वायर. सो अभी ये आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ dv बाई dx, मतलब इसका वैल्यू मिला, इसका वैल्यू मिला ये, फाइन, और ये वैल्यू यहाँ पे डाला, तो a क्या मिला, तो a क्या मिला, a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू v, सो आई विल बी हैविंग dv बाई dx का वैल्यू ये डाल दिया इंटू v, ओ इसको ऐसा बोल सकते हैं माइनस 2av इंटू 1 अपॉन 2ax plus b into 1 upon 2ax plus b. Oh my god, I mean oh my cheese, 1 upon 2ax plus b is equal to the v, so this is v, this is v, so I'll be having minus 2a into v already was there, this is v, this is v, so I'll be having minus 2a v cube, so this is the acceleration which is equal to 2a into v cube. Clear हुआ क्या नहीं हुआ? माइनस अला माइनस था ना, ये dv by dx का वैल्यू क्या था, dv by dx माइनस था ना, समझ पड़ा ये, पढ़ा, क्लियर, लिखो बेटा.